Hello everyone, my name is Priyanka. Welcome to today's decoding session of the Hindu, 13th of July 2023. From today's newspaper, we will be discussing about these three important topics. Number one is South China Sea. It is very important with respect to your UPSC examinations in today's newspaper. You can connect this with the international relations. Then coming to the next topic, that is the National Research Foundation. And then the independency of ED and CBI. This news you can connect with GS Paper 2, Polity and Governance. So what about the polity and governance portion? We read about the constitutional and non-constitutional bodies. So you can merge this news directly with this topic, that is constitutional and non-constitutional bodies in the polity. Now let us start with the first topic, that is your South China Sea and the tensions occurring in this region. So as per the writer in this editorial, the writer wants to say that if you want to ease the tensions in South China Sea, then the policy should be a diplomatic policy, not an aggressive policy. But before deciding or before giving opinion about the policy to deal with the tensions happening in the South China Sea, we must be aware about what is the South China Sea. Have a look on the map, which is in the slide. If you look at the world map, okay, let me plot certain things for you. This is the southern boundary of the China, and this is a Taiwan, जिसके बीच में हमेशा इशू होता है ताइवान और चाइना. हियर यू विल फाइंड द कंट्री वियतनाम. देखो मैं इन कंट्रीज का नाम आपको पॉलिटिकली प्लॉट करके बता रही हूँ ऑन द पॉलिटिकल मैप सो दैट आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आए. तो हियर यू हैव अ वियतनाम, दिस इज योर म्यांमार, ये है लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, एंड दिस इज द फिलिपिन आइलैंड. And in the north of the Myanmar or the northwest, you could see कि यहाँ पे आपके जो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो यहाँ पे आ जाए. करेक्ट. अब इस मैप को अगर आप अच्छे से देखोगे, सो दिस वाटर बॉडी which I am denoting with the dash, this water body is the region which is known as your South China Sea. Now, this sea is a huge area, and the countries which are bordering this sea region are many countries. Like Vietnam is there, Laos is there, Thailand is there, Cambodia is there, South China, the Philippines is there. So as per the UN clause, प्लीज इस चीज को ध्यान से समझिएगा, पूरी स्टोरी इसके बेसिस पे है. हमने यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग देखा कि अगर कोई भी लैंड बाउंड्री है, उसके आसपास कोई सी है, तो उसका कंट्रोल होता है विद इन इंटरनेशनल लॉ, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी. यानी हमने यहाँ पे तीन एरिया का डिविजन देखा था. इफ यू डोंट रिमेम्बर, वॉच माई प्रीवियस वीडियोस 1, 2 and 3. यहां से यहां तक 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया था. I want all of you to write the name of this region in the comment section. जहाँ पे हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो कंट्री के जो लैंड के जो लॉ होते हैं, यानी कि जो टेरिटोरियल लॉ होते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं. तो वी कैन से दैट, आसान से मैं खुद ही बता देती हूँ, इट इज अ टेरिटोरियल रीजन. Then another 12 nautical mile is your contiguous region, and then the area of 200 nautical mile is your exclusive economic zone, जिसपे पूरा मुद्दा आपका ये उठ रहा है. कैसे? अब ये वियतनाम है, इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मान लो यहाँ तक आ रहा है, लाओस का मान लो यहाँ तक आ रहा है,
थाईलैंड का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ तक आ रहा है, कंबोडिया का भी आ रहा है, फिलीपींस का भी आ रहा है, ताइवान का भी आ रहा है। क्या ताइवान इज ए डिफरेंट इशू। तो अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी एक कंट्री का नहीं है, तो डिस्प्यूट ये है दैट चाइना इज क्लेमिंग दैट दिस होल टेरिटरी इज माय ओनली, दिस होल साउथ चाइना सी is under my control, under control of my country. I hope the story is clear in the gist before going in the detail, right? So now we can have a look over here that what is the South China Sea? It is a marginal sea जो कि आपके पास वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आता है। फिर से आप मैप देखिए, वर्ल्ड मैपिंग तो क्लियर करनी पड़ेगी सर। यहाँ से यहाँ तक आप इस तरफ जब जाओगे पूरा पैसिफिक ओशन आता है ना। यहाँ से आपके पास अलास्का आ जाएगा, यूएस वाला एरिया आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और पूरा देखो मैप जो है फ्लैट पेपर है, अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो आप उसको इमेजिन कर पाओगे कि इट इज लाइक अ ग्लोब। तो इफ यू विल मेक दिस मैप इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लोब तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो एरिया है वो घूम के इधर से अमेरिका वाला जो कॉन्टिनेंट है उधर आ जाएगा, ठीक है, और वो पूरा एक पैसिफिक ओशन जो है वो बनाएगा। क्लियर है। तो इसका जो वेस्ट वाला पोर्शन हुआ ये है आपके पास साउथ चाइना सी, ठीक है, आप डेफिनेशन समझ सकते हो। जिसके नॉर्थ में आपके पास क्या है, कौन सा लैंड बाउंड्री है, साउथ चाइना सी। वेस्ट में इंडो चाइनीज पेनिनसुला, ईस्ट में आपके पास ताइवान है, फिलीपींस हमने देखा, इंडोनेशिया आइलैंड्स, बोर्नियो, सुमेत्रा आइलैंड्स, इसके आपको साउथ में मिले। अब ये रीजन को लेके इतना डिस्प्यूट हो क्यों रहा है कि ये सारी कंट्रीज आपस में लड़ रही थी, ये मेरा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये कह रहे हैं मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और चाइना महान है, वो कह रहे हैं ये तो पूरा एरिया ही मेरा है। बट वाई दिस एरिया इज सो सिग्निफिकेंट, वाई दिस रीजन इज सो सिग्निफिकेंट? If I talk about the geographical significance, there are two important things. First, the important Strait of Malacca is present in the South China Sea, which connects the Indian Ocean with the Pacific Ocean. पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो स्ट्रेट होती है वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी एक लैंड है या कोई कंट्री है, और ये कोई भी वापस एक बॉर्डर में कंट्री आ गई है, तो यहाँ पे वाटर बॉडी है और यहाँ पे वाटर बॉडी है। तो इस वाटर बॉडी को इस वाटर बॉडी से कनेक्ट करने वाला एक नैरो जो वाटर पैसेज होता है या जगह होती है उसको स्ट्रेट बोलते हैं, यानी कि पतली सी सड़क जैसी एक वाटर बॉडी के बीच में एक जगह होती है जो एक वाटर बॉडी को दूसरे वाटर बॉडी से कनेक्ट करती है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं इन द लेमैन लैंग्वेज। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे आई कुड एक्सप्लेन, राइट। तो अब यहाँ पे आप मैप में देखिए, दिस इज द कंप्लीट साउथ चाइना सी, दिस इज योर चाइना, ये है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, और ये आपके पास मलेशिया है। इस पूरे रीजन में आपको इंपॉर्टेंट स्टेट मिलती है, वो है आपके पास स्टेट ऑफ मलक्का, यानी कि बहुत ही नैरो पैसेज, एक पतली सी गली जिसके थ्रू ये इंडियन ओशन कनेक्ट हो रहा है पैसिफिक ओशन से। अगर इस स्टेट ऑफ मलक्का को हम ब्लॉक कर देंगे तो जो ट्रेड है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस रास्ते के थ्रू वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इट इज अ डेंजरस सिचुएशन। अगर चाइना इसको ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट मीन्स चाइना कैन ब्लॉक दिस नैरो स्ट्रेट पैसेजेस, कैन choke it, and ultimately the trade will be stopped, बिकॉज इंडिया चाइना की बनती नहीं, चाइना यूएसए की बनती नहीं, तो यूएसए भी स्टॉप हो जाएगा, उसका ट्रेड इंडिया का भी स्टॉप हो जाएगा। इसलिए बेसिकली पूरे वर्ल्ड को खतरा है, सबको इसको लेके एक टेंशन है। अगर स्टेट ऑफ मलक्का नहीं तो कुछ और स्टेट है, जैसे कि सुंडा स्टेट है, लॉम्बॉक स्टेट है, बाली और लॉम्बॉक के बीच में। आई गिव यू अ होमवर्क टुडे, ओके। तो पहला होमवर्क जो हम आपको देना चाह रहे हैं वो ये है कि आप अपने वर्ल्ड मैप में 11 इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स हैं उसको आप मार्क करेंगे, ठीक है। नाउ अबाउट द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, this South China Sea is very rich in the natural resources.
पूरा जो वर्ल्ड में मैरीटाइम ट्रेड हो रहा है उसका 60% ट्रेड यहीं से हो रहा है, 40% पेट्रोलियम ट्रेड यहीं से हो रहा है। अगर शिपिंग ट्रैफिक के बारे में बात करती हूँ, यानी कि जो शिप्स वगैरह ट्रांसफर होती है, दैट इज 1/3 एंड इट इज द 10% ऑफ द वर्ल्ड फिश। If you will limit the access of this state or this region, then the whole global economy will be affected, and especially 55% of the trade in India would be affected. चाइना एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज हो रहा है और वो ओपनली यूएस जैसे सुपर पावर्स को चैलेंज कर रहा है। नाउ अब साउथ चाइना सी को हम समझते हैं। डिस्प्यूट का रीजन आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि ये जो चाइना है, चाइना कहता है कि ये पूरा जो रीजन है वो मेरा है। दैट मीन्स वो ब्रेक कर रहा है द लॉ ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लॉज, यूएन क्लॉज। इसके अंदर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो प्रोविजन है उसको ये ब्रेक करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायलेशन बाय चाइना कैसे हुआ, अभी हमने देखा दैट इज ब्रेकिंग, चाइना इज ब्रेकिंग द यूएन क्लॉज बाय यूनिलेटरल क्लेम्स, breach of international laws and rules based order, disrupted freedom of navigation and overflight। अब इसको देखते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया इज देयर और उस कंट्री, इंडिया की कोई फ्रेंडशिप है यहाँ पे मलेशिया के साथ ले लो या इंडोनेशिया के साथ ले लो, एंड एज अ फ्रेंडशिप फ्रेंड्स कंट्री, वो दोनों कंट्रीज के पास राइट है अंडर यूएन क्लॉज कि वो यहाँ के रिसोर्सेज को हार्नेस कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। लेकिन चाइना क्या करता है, इस रीजन में कोई भी अगर कंट्री कुछ करने की कोशिश करता है तो उनको खदेड़ देता है बाय मिलिटराइजेशन, राइट, यूजिंग इट्स मिलिट्री पावर। बाकी कंट्रीज को ये यहाँ पे कुछ करने नहीं देता, वो खदेड़ देता है, राइट। So he is using the militarization, construction of artificial islands। तो जो डिस्प्यूटेड कंट्री जिनके साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं वो है आपके पास वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई एंड फिलीपींस। क्लियर? नाउ व्हाट इज दिस 9-line? देखो, अगर मैं वर्ल्ड वॉर 2 से पहले के बारे में बात करती हूँ तो ये जो एरिया था इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ जापान, क्योंकि यहाँ कहीं पे लोकेटेड। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार गया था और हारने के बाद में द जापान रिट्रीटेड, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि जो चाइना है उसको ये यूनिलेटरल क्लेम के लिए वैक्यूम मिल गया, ही बिकेम पावरफुल ओवर हियर। चाइना इज नॉट, बट क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि भाई चाइना क्या कह रहा है कि पहले तो इसने ये 11-9 बनाई थी। डैश का मतलब समझो, डैश जो आप न्यूज़पेपर में काफी बार सुनोगे कि 11-9, 9-line, so what is this? So China, when the China was, unilaterally claiming over this area, so what China did, he made 11 lines like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, and said कि ये जो एरिया है इस 11 डैश के बीच का वो पूरा यूनिलेटरली मेरा है। लेकिन बाद में चाइना ने इसको कम करके 9 डैश बना दिया, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और ये यू शेप में आपको मिलेगा। बट क्रिटिक्स का कहना है कि चाइना ने कभी भी ये स्पेसिफिकली नहीं बोला कि मेरा जो एरिया है क्या है, मतलब सिर्फ ये डैश लाइन बना दी, तो ये कोई बाउंड्री बनाने का तरीका नहीं होता। और दूसरी चीज, चाइना ये भी स्पेसिफाई नहीं करता कि वो क्या लैंड एरिया के बारे में बात करता है, यानी कि ये वाले एरिया, या फिर वो पूरे सी पे कंट्रोल करने के बारे में बात करता है। ठीक है, so that appears on the Chinese map. So what the critics are saying, that China has not been specific about what exactly its claims include, and that the 9-line that appears on the Chinese map encompassing almost the entirely of South China Sea, no fault. Now disputed islands, अब कौन से कंट्रीज जो है कौन सा आइलैंड के लिए झगड़ा कर रही है। देखो, चाइना का वियतनाम के साथ जो प्रॉब्लम है वो पैरासल आइलैंड की वजह से है। वियतनाम तो कहता है कि भाई पैरासल आइलैंड पे हमेशा से हमारा कब्जा रहा है और इसका जो है सबूत भी हमारे पास है। फिर है फिलीपींस वर्सेस चाइना, ये लड़ रहे हैं स्प्रेटली आइलैंड की वजह से। और मलेशिया और जो ब्रूनी है
इनका कोई आइलैंड पे लेके झगड़ा नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ऑलराइट, नाउ द साउथ चाइना सी का ये जो टॉपिक है वो आई एम होपिंग दैट इट इज क्लियर. So the homework which I have given you with regard to this, the video, the first topic of this video is plot the important states on the world map and clear or the political, or the map, the political, on the political map, the countries of the Southeast Asia. Now coming to the next topic, that is the National Research Foundation. देखो हम कब से डिस्कस कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है 20 जुलाई 2023, और इसमें बहुत सारे जो बिल है वो पेश किए जाएंगे. उसी में से एक बिल हमने पढ़ा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो रिजर्व एक्ट है 1980, उसका एक अमेंडमेंट का जो बिल है वो we had discussed this in the previous videos. Now we are discussing about a bill that is a National Research Foundation. So what is this NRF or what is this National Research Foundation? So it was one of the key recommendations जो कि National Education Policy में include किया गया. It will replace the SERF, the Science and Engineering Research Board, and catalyze and channel the interdisciplinary research for accelerating India's ambition. देखो उसको समझते ये क्या कहना चाह रहा है कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है जो कि फंडिंग दे रही है रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को, उन गवर्नमेंट एजेंसीज और ये जो रिसर्चर्स है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन लाने का काम है किसका? एनआरएफ का, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जहां पे वेरियस जो गवर्नमेंट बॉडीज और इंडस्ट्रीज है उनको हम एक साथ लेके आएंगे ताकि जो रिसर्च है उसको ट्रांसफॉर्म करने में हम प्रमोट कर पाए पॉलिसीज को. मेजरली यहाँ पे मुद्दा उठ रहा है दैट इज ग्रांटिंग ऑफ फंड्स. इंडिया के अंदर जब आप फंडिंग के बारे में बात करते हो तो फंडिंग बहुत मुश्किल से मिलती है रिसर्चर्स को जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, और अगर मिल भी रही है तो दे आर जस्ट फॉर द IITs, engineers, the top universities, not for the lower universities or the state universities. और वो फंडिंग का प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है कि आज फंड ग्रांट किया है, मिलेगा 1-2 साल बाद में, राइट? So there is a loophole in this. To improve this, ये आपका पास लाया गया है National Research Foundation. So it intend to act as a coordinating agency between the researchers, various government bodies and industries, promote the translation of research into policy and practice, to provide the research grants to the individuals, plan to seed, grow and facilitate research in India's universities, especially the state universities by funding. ठीक है, आप इसका प्रोसेस समझो. ये एनआरएफ कहता है कि भाई हम 50,000 करोड़ का एक बजट बनाएंगे 5 साल तक, राइट? ये 5 ईयर्स तक हमारा बजट होगा 50,000 करोड़, उसमें 28% सीसेट करो भाई, यानी कि 14,000 जो करोड़ है वो जाएगा आपके पास गवर्नमेंट के पास, एंड देन जो 72% है दैट मीन्स ₹36,000 that would be for the private sector, because अभी का सबसे बड़ा लूपहोल यही है कि इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है. अब इसका जो फीचर्स है वो क्या है? सबसे पहले इसको हेड या फिर प्रिसाइड कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर. और इसमें 10 बड़े बड़े जो डायरेक्टरीज हैं वो होंगे which will focus on different dimensions. जैसे साइंस के रिलेटेड क्या रिसर्च हो सकता है, आर्ट में हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन में हम क्या कर सकते हैं, इनोवेशन में क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या कर सकते हैं. और 18 मेंबर का एक बोर्ड होगा. इट विल बी रजिस्टर्ड एट अ सोसाइटी और इसका सेक्रेटेरियन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा. अब ऐसे करने से पॉसिबिलिटी क्या होगी कि हो सकता है इंडिया का जो शेयर है साइंटिफिक पब्लिकेशन के अंदर वो 5% से बढ़ के 7% हो जाए 2030 तक, विच इज वेरी लेस. 5% भी बहुत कम है, हम उसको बढ़ा के 7% लाने की बात करें लेकिन ये भी एक्चुअली बहुत ही कम है.
We will create a pool of talented researchers, developing the innovative solutions for India's development challenges. For example, the flood. देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, और नॉर्थ इंडिया में जो फ्लड आ रहा है, तो ऐसे जो चैलेंजेस है इंडिया में, या फिर और एनी टाइप ऑफ चैलेंजेस, डेवलपमेंटल चैलेंजेस, उसमें हम क्या इनोवेटिव सोल्यूशन ला सकते हैं, ये चीज हमको इसमें यहाँ पे मिलेगी। अब ये एनआरएफ को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो रिसर्च जो है, उसपे जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है इंडिया में। इंडिया का अगर R&D एक्सपेंडिचर देखे तो वो सिर्फ 0.7% है, जो कि बहुत बहुत कम है एज कम्पेयर टू दी अदर मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे यूएसए का 2.8% है, चाइना का 2.1% है, इसराइल 4.3%, साउथ अफ्रीका 4.2%, बट इंडिया का बहुत ही कम है, 0.7%। Low research output and impact. India traced behind in the number of patents and publications generated. ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन, उनकी रिपोर्ट कहती है कि चाइना फाइल्ड 538 मिलियन पेटेंट, जबकि इंडिया का सिर्फ 45,000 है, जिसमें 70% तो वो ला रहे हैं जो कि इंडिया में रहते भी नहीं है, नॉन रेजिडेंट है। फिर जो रिसर्च था उनकी अपॉर्चुनिटीज में बहुत कम है इंडिया में। सेगमेंटेशन होता है जिसकी वजह से, देखो डुप्लीकेशन क्या होता है? डुप्लीकेशन का मतलब है आज मैं बैठे बैठे मैंने सोचा कि डीएनए पर रिसर्च स्टार्ट करती हूँ, और मैं 10 साल से लगी हुई हूँ डीएनए 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 रिसर्च, और 10 साल बाद पता चलता है अरे ये रिसर्च किसी और ने कर रखी है। मतलब मल्टीपल पीपल आर एंगेज इन द सेम थिंग और उन्हें पता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द लूप होल इन द प्रोसेस, दैट इज नोन एज द रिसर्च डुप्लीकेशन। लोअर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ फोकस ऑन द सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज। तो ये किस तरह से यूज करेगा? दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, आप इसको एथिक्स की केस स्टडी में भी यूज कर सकते हो, यू कैन गो थ्रू दिस। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज टीबीआई एंड ईडी, द वीकनिंग ऑटोनॉमी। इसको बहुत ही शॉर्ट में हम देखेंगे, बिकॉज मेजरली ये पॉलिटिकल टॉपिक है। आई होप आप लोगों ने ये लक्ष्मीकांत से पढ़ लिए होंगे कि सीबीआई क्या है, ईडी क्या है, एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। इसमें क्या था एक्चुअली, जो मिस्टर मिश्रा है उनको 2018 में अपॉइंट किया गया, 2 साल के लिए, क्योंकि उनका टेन्योर क्या होता है, 2 साल का होता है। तो इस हिसाब से 2020 में उनको हो जाना चाहिए था रिटायर। लेकिन 2020 में एक अमेंडमेंट लाती है सरकार, ठीक है, विजिलेंस कमीशन एक्ट के अंदर, और 2021 के अंदर इनको मल्टीपल एक्सटेंशन दे देती है, और 2022 तक ये इनका रिटायरमेंट नहीं होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे इंटरफेयर करती है और उनको बोलती है कि 31 जुलाई तक आपको जो है रिटायरमेंट दे देना है, और गवर्नमेंट को फटकारती है कि हाँ, जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट हमेशा चलता है। आप हमारे किसी भी जजमेंट को लेके कोई लेजिस्लेशन पास कर सकते हो, लेकिन आप कोर्ट के डायरेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। जब कोर्ट ने आपको बोला है कि अनटिल अनलेस की कोई रेयर और एक्सेप्शनल केस नहीं हो, आप किसी का जो टेन्योर है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, एज इट इज अगेंस्ट द व्हाट, द इंडिपेंडेंस। और ये अल्टीमेटली लीड करेगा द मिसयूज ऑफ द पॉलिटिकल पावर। मतलब ऐसी सीबीआई, ऐसी ईडी क्या काम की जो सरकार के हिसाब से चले, कि सरकार बोले कि सिर्फ ये केस पे आप काम करो, ये केस पे आप मत करो। तो दिस इज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसको, कि इट इज लाइक अ केज, पिंजरे में बंद है, सरकार के पिंजरे में बंद। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द टुडेज न्यूज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, I hope the video is clear, right? And please write down the answer, and we'll meet tomorrow.